Viewers, we are coming to you live today from Bengaluru, and over the next few days we are going to be travelling across all the Lok Sabha seats in the area, come back then again for the rest of Karnataka. But today something very interesting happened. The group that talks the loudest about death of democracy today let slip again that when you are in power, the whole idea of power is very divorced from what democracy means to you when you're in the opposition. When you're in the opposition, democracy means that everyone should be free to say what they want to say, that there should be no vendetta, that the rule of law should be allowed. But when you are in power, you settle scores. People who you think are your enemies, people who you think have victimized you, should not be given the benefit of the rule of law, the process of law. Then there is only retribution. We've heard it before, and today that was reiterated by somebody who ironically is named after one of the most draconian acts that ever existed in our country. Meesa Bharti, whose father Lalu Prasad was arrested under the Draconian Maintenance of Internal Security Act, Meesa. And that's how he named his daughter that. That's how he gave her name. And today that same Meesa Bharti declared, wait for us to come back to power. You know where not just Modi, but all BJP leaders are going to land up. किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। Now remember, it was a month ago where actually Meesa Bharti's father had given a full toss to the Prime Minister. When he had said, oh, he keeps talking about dynasty, but that is only because he doesn't have any family of his own. Where is Modi ka parivar? Remember what the Prime Minister did with that statement. Today, it was the turn of the daughter, and here is how the Prime Minister responded, although not directly, to Meesa Bharti. इंडी अलायंस के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब मजा देखिए देश में क्या चल रहा है। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। Now remember, the issue of crackdown on corruption, you just heard the Prime Minister talk about it, has been a recurrent theme. Every time there is a raid, every time there is an arrest, the entire opposition bloc unites in the chorus that this is nothing more than a witch hunt. Anyone who opposes the Modi government has the agencies set upon them. The BJP, despite that, has plodded on saying this is the law doing its job and it will continue to do its job. And today, the BJP united in calling Meesa Bharti's comment as nothing more than the outpouring of a frustrated and contained lot. Listen. आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं। ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा, और लोगों से मीसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है, जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। We are a country anchored in the rule of law, and in India, if you commit wrong, it is the concerned courts and the agencies which will deal it. It's not that Meesa Bharti can get up one morning and say, isko andar kar do, usko andar kar do. The other thing is that they are coming to power. That's also, I think, delusional. पहले उन्होंने अपना
और अपने परिवार का विचार करना चाहिए। इतने प्रकार के घोटालों में और करप्शन में ये लोग अटके हुए हैं और ये कोई हमने लगाए हुए आरोप नहीं है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। तो इसलिए इस प्रकार की बातें कहकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, न्यायपालिका का मजाक उड़ाना वो छोड़ दे। Like I said at the beginning, what Meesa Bharti today has said is not a solitary instance. There have been leaders right at the top of the opposition who have said earlier, apna time aayega when we will be in power, wait and see what kind of action follows. And these were, you can call it a threat, you can call it a warning, you can just call it an open declaration that have come from people as varied as Mamata Banerjee and Rahul Gandhi. अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। ইলেকশনের পরে এখানে তো আমাদের সরকার থাকবে, আর আপনি সবাইকে জেলে পাঠাবেন কোথা থেকে? আপনি যে বলছেন সবাইকে জেলে পাঠাবো জুন মাসের পর, তো আমিও তো বলতে পারি সরকার তো আমাদের এখানেই থাকবে, তাহলে আপনাদের সবাইকেও আমরা জেলে পাঠাবো। So what does one make of this statement? Is this a threat? Is this a warning of a retribution? Or is this just a case of a shoe being on the other foot? Joining us is Shazia Ilmi, national spokesperson of the BJP, senior journalist Harshvardhan Tripathi, Varun Purohit of the Congress. And my first question is to you, Kanchana Yadav ji, democracy की बात होती है, आप आरजेडी में हैं, और आज तो मतलब जो मीसा जी ने बोला वो तो वैसा ही हो गया, जैसे बोलते हैं ना, तो जानता नहीं मेरा बाप कौन है, वैसा ही उन्होंने बोल दिया कि हम आएंगे सबको जेल में डाल देंगे। क्या बात है, कम से कम आप लोग इस पर डिबेट तो कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। क्योंकि इसलिए अच्छा लग रहा है कि 2013, 14, 2019 और उसके बाद से जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन किया है, हमेशा कहा कि भ्रष्टाचारियों को मैं जेल में डाल दूंगा, और उनके निगाह में और निशाने पर हमेशा विपक्ष हुआ करता था। तब तो डिबेट नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, वो कर सकते हैं, वो भगवान है ना, वो आरोप किसी पर भी लगा सकते हैं। लेकिन यह विपक्ष नहीं कह सकती कि जो पीएम केयर फंड में जो घोटाला हुआ, जो चंदा चोरी में जो घोटाला हुआ, चुनावी चंदा में जो घोटाला हुआ, जो चंदा लो धंधा दो स्कीम आया था, उसका अगर जांच होगा तो चाहे वो प्रधानमंत्री खुद हो, चाहे वो कोई भी भाजपा का नेता हो, सब के सब जो लिप्त होंगे वो जेल जाएंगे। ये पूरा स्टेटमेंट था, ये पूरा कहने का मतलब था। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो भगवान है, वो संविधान से ऊपर है, वो कानून से ऊपर है, उनको मत कहना। अरे कोई भी मुखिया जो है, जो देश का मुखिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने आप में को विक्टिम कार्ड क्यों खेलते रहते हैं कि वो तो मुझे गाली दे दिया, वो तो मुझे वो कह दिया। पूरे चुनाव प्रचार में वो सिर्फ कांग्रेस को, आरजेडी को, अन्य विपक्ष पार्टियों को गाली दे रहे, कोस रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया तबाह हो गई है इन पार्टियों की वजह से, और खुद काम की बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने पे आई तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये इनका तो नजरिया है, ये इनका चाल है, चरित्र है, और इसके अलावा इनके पास क्या है, क्या मुद्दा क्या है इनका? 2024 में मुद्दा क्या है इनका, एक बार भी नहीं बताएंगे हमारा मुद्दा है। ओके सर, विक्टिम कार्ड, you're 100% right, you're 100% right, विक्टिम कार्ड नहीं चलता है। ओके, विक्टिम कार्ड का कोई फायदा भी नहीं होता। कंचना जी ये बता दीजिए कि मोदी जी के खिलाफ कितने एफआईआर हैं, और उनमें से किस एफआईआर के चलते जब आपकी सरकार बनेगी 3 जून को तो आप उनको जेल में डालेंगे? पीएम केयर्स में कितने एफआईआर हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितने एफआईआर हैं, किन किन राज्यों में दर्ज हैं, और कौन उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है? नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। हम भी कह रहे हैं कि विपक्ष पे कितने एफआईआर थे 2013-14 में, कौन से आरोप सिद्ध थे कि आपने सीधे बोल दिया कि हम सबको जेल में डाल देंगे? और एक कौन सा आरोप सिद्ध हुआ है कि आप सारे दिल्ली में होर्डिंग लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, सबका चेहरा ब्लैक कर दियो, अपना चमकाते हुए चेहरा कर दियो? कौन सा आरोप लगा है जो पूरा होर्डिंग आपने दिल्ली भर में लगाया हुआ है? तो ये आरोप लगा है, कहाँ एफआईआर हुआ है, कौन सा केस हुआ है, कहाँ कोर्ट में गए, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यह है कि आप जब धमकी देते हो विपक्ष को खत्म करने की, तो आप पर भी आरोप लगेगा कि पीएम केयर फंड का जांच होगा।
इलेक्टोरल बॉन्ड का जांच कंचना होगा, जी। सबका जांच होगा। अगर चंदा लेकर कंचना इन्होंने जी, धंधा किया है तो इन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र आरजेडी मोदी के क्यों ना हो। जो इसी देश में नेता इंदिरा गांधी जी पर भी कार्रवाई हुई थी, लालू इंदिरा गांधी जी को भी कोर्ट आरोपी जाना पड़ा नहीं था। है। लालू जी कॉन्विक्ट हैं, 4 केसेस हैं चारा घोटाले के, उसमें से 4 में उनको सजा हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अक्यूज्ड हैं, वो कॉन्विक्ट हैं, वो जेल जा चुके हैं, वो जेल से बाहर आए हैं। So there is a difference when you're asking for an investigation as opposed to when somebody has been convicted and the final case is still in the course of a trial. The charge sheet has been filed. It's not just an allegation. The charge sheet has been filed in the Land for Jobs scam in 2023, in which Mr. Tejasvi Yadav is also one of the accused. But anyway, let me bring in Shazia Ilmi. Shazia Ilmi, this constant victim card, मुझे गाली दे दी, अरे देखो ये मैं करप्शन के खिलाफ हूं इसलिए ये मेरे को जेल में डालने की बात कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली देम सेइंग दे थिंक देयर इज अ केस टू बी मेड आउट इन पीएम केयर्स एंड इफ इट इज प्रूवन रॉन्ग दे विल थ्रो द पीएम इन जेल एंड ही वोंट एनी लॉन्गर बी अ पीएम आफ्टर 4th of June. After 4th of June they'll throw him in jail. So what stops them from going to courts and insinuating and alleging that there is something going on which was not correct in PM Cares Fund? What stops them? Why haven't they gone so far? And as you are rightly asked, how many FIRs are there against the Prime Minister or against any of the BJP ministers at the centre? And I'm sure my good friend here, Kanchana ji, would know. Kanchana ji, आप इतना चीख चिल्ला रही हैं और आप जवाब नहीं दे पा रही हैं. आप कम से कम सिखाइए तो मीसा जी को और बताइए उनको कि अदालतें काम करती हैं ना. वो तो ना तो वो जज हैं, ना वो कोई एजेंसी हैं, ना ही वो कोई हवलदार हैं या कोतवाल हैं. वो हैं क्या मीसा जी? एक बिगड़ैल बेटी हैं लालू प्रसाद यादव जी की, और इस वजह से वो कह सकती हैं, गाली बक सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि वो हार रही हैं. जहां जहां वो जाती है और उनके भाई जाते हैं, गाय भैंस डर के अंदर चली जाती हैं कि हमारा चारा ना फिर से चुरा ले. ये तो हालत है. और वो इंसान बोलेगा प्रधानमंत्री जी के बारे में बगैर किसी सबूत के. एक ढेले भर का सबूत नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है. पीएम केयर्स फंड कितने आपने एफआईआर किए बताइए? हिम्मत है? जवाब दीजिए. इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितने आप बताइए कंचना जी, कितने आपकी तरफ से पीआईएल गए हैं या आपकी पार्टी की तरफ से? क्यों बताइए ना. लिया है, आपकी भी बारी आएगी. कितने आपने पीआईएल होगा? इंदिरा गांधी जी को भी कोर्ट जाना पड़ गया था मैम. ये मत बोलो कि प्रधानमंत्री जी देश से ऊपर है. प्रधानमंत्री जी देश अरे से ऊपर बात नहीं, सुनिए, इमरतियां ना बनाइए आप. नागरिक है. नहीं, नो इमरतीस, नहीं, सब बात का जवाब दीजिए. जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए. घूमिए नहीं और ना ही घुमाइए. कोई घूमने के लिए नहीं बैठा है यहाँ पे. जवाब तो आप दीजिए. वहीं पे रहिए आप जहाँ बैठी हुई 25 में से 23 किसी को घूमना नहीं है. कंफ्यूज आने की कोशिश ना कीजिए आप. और सीबीआई आईटी के केस में आरोपी थे. 25 में से 23 हाँ, केस पर कुछ भी बोलेंगी. बुनियादी सिविक्स, बुनियादी कानून की जानकारी नहीं है. बुनियादी कानून की जानकारी नहीं है. मुझे अफसोस होता है. लेकिन जिस तरह से मीसा भारती जी ने बात की है ना, अपना मजाक उड़वा दिया है. मैं बताऊं आपको, मजाक आपका बन गया है. जिस तरह से उन्होंने बोला है ना, ये है एटीट्यूड. ये देखिए, ये है बिगड़ैल बेटी, बिगड़ैल बाप की. ये है तरीका. हम पहुंचा देंगे जेल में. आप कौन होती है? आप कौन है भैया? नहीं, आप बताइए तो मैडम, कौन है आप? लालू जी की बेटी होने का मतलब है कि आप किसी को भी जेल में डलवा देंगी? क्यों? आपके पॉकेट में रहता है. आप पॉकेट में रखती है जजेस को, आप पॉकेट में रखती है थानेदार को, आप पॉकेट में रखती है सारे के सारे जांच अधिकारियों को. आपकी जेब में घूम रहे हैं वो क्या? नहीं, आपकी जेब में घूम रहे हैं. सुनिए, जब आपका वक्त था ना, आपके पिताजी का, मीसा जी के पिताजी का वक्त था, तो जंगल राज था बिहार में, फिरौती राज था, अपहरण राज था. सुन लीजिए. Just a second. Can I have silence for 30 seconds? Just by the way, none of this explains why there haven't been any cases filed as they should. If you think that there is rampant corruption in the case of PM Cares Fund, if you think there is corruption in electoral bonds where actual corruption has taken place and criminality is involved, then you must file FIRs and action must be taken. हर्षवर्धन जी, माई क्वेश्चन इज, आज एक CSDS का सर्वे आया है, उसमें 55% ऑफ द पीपल हैव सेड दैट करप्शन हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 55 years. सो इफ टुडे मीसा भारती इज सेइंग कि भाई करप्शन हुआ है
और देखिए आप 4 जून के बाद प्रूव होगा, हम इनको जेल में डालेंगे। लोग भी तो कह रहे हैं कि 55% भारतीय कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में करप्शन बढ़ा है। पद्मजा, मुझे लगता है कि जब इस तरह के सर्वे होते हैं कि पिछले 5 सालों में करप्शन बढ़ा है, तो किसी से भी आप पूछेंगे तो 2, 3, 4 चीजें हमेशा होती हैं कि करप्शन बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा है। ये किसी भी वक्त आप ये करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो जिसको कहते हैं ना कि सामने क्या दिख रहा है, तो सामने ये दिख रहा है कि आजाद भारत के इतिहास में नेताओं पर जिस तरह के आरोप लगे उन पर कार्रवाई पहली बार हो रही। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि सामान्य जो ज्ञान की चीजें होती हैं वो भी ध्यान में नहीं आती हैं। ईडी कार्रवाई तभी कर सकती है जब कोई मामला किसी और एजेंसी में दर्ज हो और उसके बाद उसमें पीएमएलए और पैसे का मामला आता है, तब ईडी उसमें शामिल होती है। ईडी कभी भी सीधे किसी पर हाथ नहीं डाल सकती, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हम लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की बात करते हैं तो दुस्साहस है। भारतीय राजनीति में ये देखने को मिल सकता है कि जो व्यक्ति दोषी हो उसके परिवार के लोग चुनौती दे रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं। आप राजनीतिक तौर पर बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे विरोधी भ्रष्टाचारी हैं, हम आएंगे तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल में डाल देंगे। लेकिन ये कहने का साहस भी नहीं है, क्योंकि उस परिवार में सचमुच बहुत गंभीर आरोप हैं, दोषी हैं और गंभीर आरोप हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज से वो नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ 10 साल के यूपीए शासन में सारी कोशिशें हो चुकी हैं अलग अलग तरीके से। अमित शाह को बाकायदा न्यायालय ने तड़ी पार कर दिया था, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद सबसे वो मुक्त हुए। अब सवाल यहां यही उठता है कि ये देश जो एक कहते हैं ना कि आप राजनीतिक बयानबाजी तो कोई कुछ भी कर सकता है, आप टीवी पर बैठकर बोल दीजिए, भाषण दे दीजिए, लेकिन ये दिखा रहा है कि जो 2019 के बिहार के नतीजे थे सारा ध्वस्त हो गया था। 1 सीट मिली थी, वो भी कांग्रेस को किशनगंज, 40 में से। अब 2024 में उम्मीद थी लालू जी को कि नीतीश जी साथ रहेंगे, जीतन राम मांझी साथ रहेंगे तो शायद मामला बन जाएगा। उल्टा हो गया। और आप बिहार के सामाजिक समीकरण को देखें तो आप कितना भी कहें कि एमओआई समीकरण बड़ा इंटैक्ट है, तो भैया नीतीश जी के साथ जो लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो लोग हैं, जीतन राम मांझी जी के साथ जो लोग हैं, चिराग पासवान के साथ जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग हैं, दरअसल असली संकट ये है। और मुझे लगता है ये राजनीतिक चीज है, चुनावी समय की बयानबाजी है, इसको मैं इसी तरह से देखता हूं। आपने एमवाई समीकरण की बात की तो मेरे को सडनली याद आया, तेजस्वी यादव कहते थे कि हम एमवाई नहीं, हम माए बाप पे बिलीव करते हैं, हम सबके लिए हैं, हम बहुसंख्यक के लिए भी हैं, हम आधी आबादी के लिए भी हैं। अभी उनकी एक लिस्ट आई थी 22 नामों की, 22 नेम्स वर इन दैट लिस्ट। आउट ऑफ दैट 8 वर यादव्स, 2 वर मुस्लिम्स। तो जितने आपके बाप थे वो सब सिर्फ 10 सीटों में सिमट करके रह गए, बट दैट्स एनीवे अ साइड बार। लेट मी ब्रिंग बैक कंचना यादव, रिस्पॉन्ड कीजिए। कोशिश नहीं हुई है अमित शाह के खिलाफ, कोशिश। हाँ हर्षवर्धन जी फिनिश। माई बाप दोनों मुख्यमंत्री थे, ये कह सकते हैं, माई बाप बिल्कुल हैं उनके, दोनों मुख्यमंत्री थे भाई, बड़े आदमी हैं वो। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जर्नलिस्ट है, थोड़ी से तो अपनी मर्यादा आपकी भी होनी चाहिए। नहीं ठीक है, मैं बताती हूँ। भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया और कहती है क्या महिला सशक्तिकरण। अरे आप बताइए ना, हमने कुशवाहा को, अति पिछड़ा को, सबको टिकट दिया, और एससी जो जनरल सीट है हमने उस पर एससी कैंडिडेट भी दिया। और ये बताइए कि बिहार की हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी कब जनरल सीट पे, अनारक्षित सीट पर कब दलित को कैंडिडेट बनाकर उतारा हो, और एक भी सीट महिला को नहीं। और महिला पे क्या इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कमेंट करते हैं कि किडनी के बदले टिकट दिया गया। अरे शर्म करिए आप लोग, शर्म करिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कुछ तो मर्यादा रखिए, अपने संवैधानिक पद का मर्यादा रखिए। माई की का भी पार्टी है और बाप का भी पार्टी है। कम बैक टू द पॉइंट। जी साथ में घूम रहे हैं। कंचना जी आपसे सवाल ये था, अमित शाह के ऊपर केस हुआ, मोदी जी के ऊपर केस हुआ, मामला कोर्ट में गया, आप उनको जेल में डालना चाहते थे, जेल में डाल सकते थे पर नहीं निकला ना कुछ उसमें। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की, जब आप सत्ता में थे कोशिश हुई, नहीं गए ना जेल। आंसर नहीं किया हमने अभी इस पर, हमने आंसर नहीं किया। 10 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे काम कर रही है। सत्ता पक्ष के तो जीपीएस भी भूल गई है, वो किसी का जीपीएस अवेलेबल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, पीएम केयर फंड हो चाहे चुनावी चंदा हो, जितने भी चंदे लेकर इन्होंने धंधा दिया है सबकी जांच होगी और पोल खुलेगा इस देश के सामने। और जो भी लिप्त होंगे इसमें, जो भी इस करप्शन में शामिल है, सब पे और सब पे
कार्रवाई होगी, सब जेल में जाएंगे। You know, an interesting thing is people keep talking about how the agencies are working, completely unleashed on the opposition. Let me give you a very interesting anecdote because nobody goes into the details. Just 2 weeks ago, a bureaucrat in Punjab was searched by the ED in the guava orchard scam. Again, everyone said, "Aam Aadmi Party ke upar hai, kyunki Aam Aadmi Party ki sarkar hai, the ED is cracking down on Aam Aadmi Party, etc." Do you know that the case was actually started by the local police, by the Punjab police? The initial case was filed by the Punjab police. The ED took over that case and conducted the raids. So nobody wants to actually go into the facts, but they talk about how the ED is out for a witch hunt. Anyway, let me bring in Shazia Ilmi again. Respond to this. Shazia Ilmi. There is a widespread, जिसको कहता है कि दमन चल रहा है, और इसीलिए अब this is more and more the opposition hitting back and saying, do not think that only you can misuse. भाई आप मिसयूज कर सकते हो, वो भी मिसयूज कर सकते हैं, उनका भी टाइम आएगा। देखिए, मुझे ये मिसयूज वाले इल्जाम से बहुत आपत्ति है। अगर हम ये इस बात को मान रहे हैं और तस्दीक कर रहे हैं, तो क्या हम अपनी देश की अदालतों का, अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली का ऐसा मजाक बना रहे हैं, उपहास बना रहे हैं, उपहास का पात्र? ये सोचने वाली बात है। और आपने अभी भी खुद कहा, अगर मामले में कोई दम नहीं हो, वो FIR झूठी हो, मलिशियस रीजंस की वजह से की गई हो, तो जाहिर से बात है जब तफ्तीश होगी, जब जांच होगी, तो वो केस निरस्त हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं होगा जो हुआ एक बार चारा घोटाले में, और वैसा भी नहीं होगा जैसे उसके बाद हुआ लैंड फॉर जॉब्स को लेकर। जिस तरह से रेलवे में भर्तियों को लेकर IRTC में बाकायदा नौकरियां दी जाती थी और वो गरीब लोगों का जमीन का पट्टा और कागजात लिए जाते थे। अगर होगा, अगर झूठा इल्जाम होता तो केस नहीं बनता, और केस बनता तभी चार्जशीट होती, चार्जशीट होती तभी उसकी तफ्तीश होती, तफ्तीश होती और सारे प्रमाण देखे जाते तभी जेल होती या बेल होती। और अगर बेल होती तो आप बाहर आकर भी रह सकते थे, लेकिन अगर जेल होती तो आप जेल होती। और इसी वजह से लालू जी जेल में गए, और इसीलिए दुनिया भर की बातें आप कर लीजिए। मैं आपको चुनौती दे रही हूं, आपको लगता है इतना दमनकारी सरकार है, जो जितने भी प्रमाण है आपके पास, आप जाइए। आप, मैं बात को बताती हूँ, UPA 2 के वक्त में कम से कम 45 PIL की गई थी, उसी वक्त उन्हीं की सरकार के अगेंस्ट। उनमें से 35 पर काम हुआ, वही एजेंसी थी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था केश पैरेंट, काम हुआ और SWO मोटो नोटिस भी लिया गया और मामला चला। आप कर दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? जो रोजाना आप लोग बोलते हैं आकर, किसी एक पर कर दीजिए, ये मेरी चुनौती है। और किस मुंह से आप बोल रही हैं? पर मुझे दिक्कत है आपके एटीट्यूड से। जिस तरह से मीसा भारतीय कह रही है जेल में भिजवा देंगे, आपने समझ क्या रखा है? बपौती है आपकी क्या? ये पूरी पार्टी, लोग क्या समझती हैं आप अपने आप को? आपके पिता रहे होंगे मुख्यमंत्री, अपहरण राज में, फिरौती राज में, लेकिन आप इस तरह से लोगों से बात करेंगे? वरुण पुरोहित, हिम्मत कैसी हुई आपकी? ओके, मतलब मुझे उससे दिक्कत है बहुत ज्यादा। Varun Purohit, if you are talking about corruption, today actually Rahul Gandhi said something very startling. I think it was in a rally in Rajasthan. He said that अब हम 1 लाख रुपए सबके बैंक खाते में डालेंगे सालाना, which means 8,500 rupees खटाखट जो है हर महीने लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे और सारी गरीबी मिट जाएगी। तो अगर इतने खटाखट गरीबी मिट सकती थी तो इतने सालों तक क्यों नहीं मिटी? क्या इसलिए क्योंकि जब 1 रुपया निकलता था दिल्ली से तो 10 पैसा ही लोगों तक पहुंचता था? ये खटाखट तो 70 साल तक हो सकता था। लेट्स क्विकली लिसन इनटू राहुल गांधी, देन आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा
से निकल जाओगे। तो गरीबी क्यों नहीं मिटी वरुण पुरोहित? Is it because of corruption? And is this the crackdown on that corruption which is antagonizing so many people? पद्मजा जी, आपको गणगौर की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ राजस्थान में गणगौर बड़ा अच्छा त्योहार होता है, उसकी शुभकामनाएं आपको। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कोर्ट की, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से बाहर आए। कितनी नानुकुर कर रहे थे, डिटेल्स नहीं दे रहे थे। बृजभूषण सिंह के मामले में कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। चिन्मयानंद का केस बलात्कार का वापस ले लिया। ये आजाद भारत की पहली सरकार है, 10 साल की सबसे फेल सरकार, जो आप बातें कर रहे थे बार बार। फिर आपने एक सर्वे की बात की, बिल्कुल सही है। करप्शन, नोटबंदी का जो करप्शन था, बैंकों तक पहुंच गया, सबको पता है। बैंक तक करप्शन हो गया नोट बदलने का। तो ये करप्शन तो हो रहा है, लेकिन जब बात आप प्रमाण की, एविडेंस की करते हो, तो ये सरकार हटेगी जब भी तो एविडेंस कलेक्ट होंगे, नहीं तो ये आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी आए, सबसे पहले फाइलें हटा दो, जला दो, हटा दो, पुरानी सब कुछ किया था उन्होंने। ये जब सरकार हटेगी तो जो कर्मकांड इन्होंने किए हैं उसका खुलासा किया जाएगा। जहां तक आप अभी राहुल गांधी की बात करो, राहुल गांधी ने नोटबंदी के टाइम भी कहा था इस सदी का सबसे बड़ा करप्शन है, सबसे बड़ा घोटाला है। पीएम केयर फंड की कहते हैं उसमें आरटीआई में नहीं आता, आरटीआई भी हम लाए थे। अब जो आप बात कह रहे हो 8,500 रुपए महीने की जाएंगे, देखिए मनरेगा जो थी ना, मनरेगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की नोटबंदी बीन गिवन नोट बट सर, ये सारी जो आपने मुद्दे उठाए हैं, ये सब मुद्दे तो कोर्ट में गए हैं ना, और कोर्ट से वहां पर इनको क्लियर किया गया है। इनमें से कौन सा चीज है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया है? मैं आपको वही बता रहा हूं। अभी शाहजियानी जी ने कहा कि यूपीए के टाइम इतनी पीआईएल हुई थी, उस पर कार्रवाई। तो भाई यूपीए तो डेमोक्रेटिक सरकार थी, जब भी तो कार्रवाई। आपके यहाँ तो कोई पीआईएल करेगा तो उसके पीआईएल करते ही पता नहीं कितने नोटिस क्या क्या उसको टॉर्चर करना शुरू कर दोगे। डर के मारे कोर्ट नहीं जाता आजकल आदमी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आम जनता सबको पता है, आपको भी पता है। और जो बात अभी आप 8,500 की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं स्कीम मनरेगा लाया कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की सबसे बड़ी योजना है। मनरेगा से कोरोना के टाइम भी ग्रामीण इलाके में लोगों का काम चल गया। अब जो बात है, हम इसको ऐसा फॉर्मूला लाएंगे तो 8,500 रुपए सबके पास जाएगा। जा ही रहा है, हमारे फॉर्मूले पे ही काम कर रहे हैं मोदी जी। टेक्नोलॉजी कौन लाया? राजीव गांधी लाए, तो विरोध करते थे उसका। डीबीटी के लिए कहते डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, हमने कर दिया, हमने कर दिया। वो तो सब कांग्रेस की योजना थी। और इतनी बाय द वे, आपको पता है ना, डिमोनेटाइजेशन जनवरी 2023 में हैज बीन गिवन अ क्लीन चिट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन अ क्लीन चिट फॉर डिमोनेटाइजेशन। मैं उसी पे आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। मेरी बात तो सुन लो आप, मेरी बात तो सुन लो। आपने 1947 की बात की, मदर फादर से, मम्मी पापा से पूछना, सुई नहीं बनती थी देश में, सब चीज बनती चली गई। आज ये हो गया। आपने 70 साल की बात की, 70 साल में तो प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 साल आ गए, 7 साल अटल जी के आ गए। तो ये आप ये कहो 54 ईयर्स 55 ईयर्स में कांग्रेस ने क्या किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, व्हाइट रिवॉल्यूशन किया। आज जो पका पका माल इनको मिल रहा है ना, 70 साल की बात कर रहे हो आप, जो तैयार किया सब लोगों ने, उसका ये आनंद ले रहे हैं। अगली बार जो अब जीएसटी हो गया, टैक्सेशन डायरेक्ट हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया, तो टैक्सेशन इनके हाथ में पैसा आ रहा है, स्टेट्स में जाता, ये स्टेट्स को देते हैं। तो ये बहुत बड़ी चर्चा है। डिटेल आप इसकी जब डिस्कशन करोगे, मैं आपसे और कर सकूंगा। ये जो हमने बिल्कुल इकोनॉमी को सुधार के रखा, हो सकता है मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमी की नीतियों को का समर्थक नहीं रहा हूं कभी भी, लेकिन उसके बावजूद जो 10 साल है, आईएलओ की रिपोर्ट देख लो आप, आईएलओ को बंद कर देंगे। ये तो आप देखना, दोबारा अगर आ जाते हैं तो आईएलओ का ऑफिस बंद कर देंगे हैबिटेट सेंटर से, क्योंकि आपने दिखाया 83% युवा बेरोजगार हिंदुस्तान के अंदर। ये बहुत सी चीजें जो आप ऑब्जेक्शन होगा, जो इनके खिलाफ जाएगी। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, पैसा जाएगा खटाखट, और जो जितने ऑपोजिशन के लोग हैं, जब कांग्रेस आएगी तो सारे ऑपोजिशन के लोग यानी कि बीजेपी के लोग जेल में जाएंगे सटासट। That is the formula after 4th of June. पद्मजा जी, ये अगर कहें कि सरकार आएगी तो ये कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा एक पहलू है। अभी जो आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पे, उसमें एक आरोप तो ठीक दिखता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाता है उस पर कार्रवाई नहीं होती। उस पर तो मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि ये सचमुच चिंता की बात है। और अगर उसमें, और मैंने पहले भी कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर प्रफुल्ल पटेल को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मामला हुआ, फिर क्लीन चिट मिली, तो मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट उस क्लीन चिट को रद्द करे और फिर से उसकी जांच कराए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। बड़ा वर्ग जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार में एजेंसियां जांच कर रही, कार्रवाई कर रही हैं,
90% केसेज में आरोप किसी और ने लगाया था। 90% केसेज में मामला कभी और दर्ज हुआ था। यहां तक कि लालू जी के ऊपर भी यूपीए के समय में सारा मामला दर्ज हुआ था, कांग्रेस के शासनकाल में। यहां तक कि जो सोनिया जी के ऊपर मामला है वो भी 2013 में दर्ज हुआ था, भाजपा की सरकार नहीं थी। और जितने मामलों में आज के समय में आपको ये भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं, और मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि जब लोग कहते हैं कि इतना कुछ हुआ देश में। वरुण पुरोहित जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वो कहने लगे कि मम्मी पापा से पूछिए, तो हमारे मम्मी पापा से पूछना छोड़िए ना, हम आपको बताते हैं 30 सालों में देश में स्थिति ये थी कि एक वित्त मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी शिवगंगा, और शिवगंगा में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने सोचा कि यहां सबका खाता खुलवा दे। आप नहीं जानते होंगे, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी भी हूं और मैंने कवर भी किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसलिए बता रहा हूं। जब कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो सारे सरकारी बैंक उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में टूट पड़ते हैं, वहां सबसे ज्यादा बैंक, सबसे ज्यादा एटीएम। उसके बावजूद शिवगंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में सबका खाता खोलने का सपना चिदम्बरम जी का सपना रह गया, और नरेंद्र मोदी आते हैं तो 34 करोड़ खाते खुल जाते हैं, जो अब वो संख्या और बढ़ गई है, और उन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए जमा भी हो जाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बता, जिस आधार को आप लागू नहीं कर पाए, उन्हीं नंदन की नीलेकड़ी को लेकर आते हैं और उसको वो जोड़ देते हैं डीबीटी से। जिस जीएसटी को आप कह रहे हैं कि पहले हमने सोचा, वो अटल जी की सरकार में सोचा गया। और दरअसल कांग्रेस के यूपीए, जिसको मनमोहन का कार्यकाल आप कह रहे हैं, वो मनमोहन सिंह की नीतियां नहीं थी, वो पीवी नरसिम्हा राव की नीतियां थी। और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जो बेहतर हुआ, उसको 10 साल में खाया यूपीए की सरकार ने और बर्बाद कर दिया नीतियों की वजह से, जिससे हम फ्रेजाइल 5 में आ गए, पॉलिसी पैरालिसिस हो गई, लॉस्ट डेकेड हो गया। ये भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, जहां से खींचकर अभी हम 2014 से 2024 में पहुंचे। Varun Purohit ji, it is not just about what Meesa Bharti said. I also played what Rahul Gandhi said. Listening to all of this, it makes one wonder, do politicians across the board think that हमारी एजेंसी है, मतलब हमारी मुट्ठी में है, हम जब आएंगे तो उसका हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि जिस श्योरिटी से राहुल गांधी जी ने भी बोला कि ये सारे आईटी ईडी के अफसर जो हैं वो समझ ले कि उनको ऐसा लेसन सिखाया जाएगा दैट दे विल रिमेंबर। So essentially what you are saying is कि हाँ मुझे पता है कि एजेंसी तो मेरी जेब में है। Then what impartiality of institutions are you talking about? You are already admitting that institutions are subservient to you, or as was once said, a caged parrot. पद्मजा जी, अभी आपने सबने मान लिया कि यूपीए की सरकार में ही करप्शन पे कार्रवाई हुई थी, इसका मतलब फेयर और सरकार थी, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस थी। नहीं तो क्यों करते हमारे पार्टनर्स या हमारे अलाइज थे उनके खिलाफ कार्रवाई? तो 10 साल में मोदी जी ने तो की नहीं, इसका मतलब मोदी जी के अंदर जील नहीं है करप्शन के खिलाफ। ये अब जो आप बात करो, राहुल गांधी ने ये बात क्यों कही? इसलिए कही कि आज जो आदेश दिया जा रहा है खाली विपक्षी नेताओं के खिलाफ दिया जा रहा है। तो जो आज सरकारी संस्था है, सेंट्रल एजेंसीज है, उनको क्या काम करना चाहिए, क्या निर्देश पे काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। इंडिपेंडेंटली जब नहीं कर रही हैं, हैरेस कर रही हैं विपक्ष के नेताओं को। ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आप भी जानते हो फ्री में लड़ रही बीजेपी, जितनी भी मोदी जी की मीटिंग हो रही है फ्री में हो रही है, कहीं से तो पैसा आ ही रहा है। तो फिर ये सरकार में इसलिए किस तरीके से पैसा ले रहे हो, जांच होगी। बिगर पैसे के कोई भी राजनीति आज के समय में नहीं कर सकता है। और जिस हिसाब से बीजेपी के सम्मेलन होते हैं, बीजेपी की पार्टियां हो रही, सब काम तो पैसा खर्च हो रहा है, अनाप शनाप कहां से आ रहा है? तो जांच होगी। सेंट्रल एजेंसियां जिस हिसाब से विपक्ष के नेताओं को हैरेस कर रही है, उनपे खाली उन्हीं को चुन चुन के कर रही है, ये इस पे क्वेश्चन है। नहीं, कहां कर पा रही है? पार्टी में पैसे ही नहीं है, कहां खर्च रही है? आप बताइए। त्रिपाठी जी, मैं इनसे सहमत हूं, जिनके नाम ले रहे हैं, पार्टी के पास पैसे नहीं है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है सर, वो भी मोहब्बत पे तो चली नहीं है ना। पैसे तो उसमें भी लगे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि रैली करना मतलब करप्शन, देन यू हैव ऑल्सो स्पेंड प्लेंटी ऑफ मनी। दैट बीइंग सेड, यस, if justice is seen to be done, it should be even-handed. Otherwise, there will always be the feeling that our time will come and we will also pay you back in an even coin, in the same coin. And that perhaps explains the kind of reactions that we've seen from Meesa Bharti, from Rahul Gandhi, from Mamata Banerjee. Thanks very much, all gentlemen, Shazia Elmi and Kanchana Yadav, for joining me.